بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق شیخ جغرافی یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی قدیم ریاست کی داستان جہاں کی رانی عقل مند، سیاست دان اور انصاف پسند مگر مشرک، لیکن پھر اس کی زندگی میں روشنی آئی، اللہ کا پیغام آیا۔ یہ ہے ملکہ بلقیس کا واقعہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ النمل میں آتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سبا ایک شاندار اور باوقار سلطنت کے طور پر مشہور تھی۔ یہ سرزمین موجودہ یمن کے جنوبی علاقوں میں واقع تھی، جہاں وقت کی رفتار سست دکھائی دیتی تھی، لیکن عقل، تمدن اور دولت کی رفتار برق رفتار تھی۔ سرزمین سبا صرف ایک حکومت نہ تھی، بلکہ تمدن، ثقافت، حکمت اور علم کا وہ خزانہ تھی جسے دیکھ کر دور دراز کے بادشاہ رشک کرتے تھے۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کی، مگر اس سے بہت پہلے سبا کی تاریخ ہمیں ایک پرشکوہ آغاز کی طرف لے جاتی ہے۔ سبا کا تذکرہ نہ صرف قرآن کریم میں آیا ہے، بلکہ تاریخی متون، آثار قدیمہ، عربی شعرات میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مورخین نے مطابق سبا کی سلطنت کم و بیش 1000 سال قبل مسیح قائم ہوئی اور کئی صدیوں تک اپنے جغرافیائی محلِ وقوع کی بدولت عرب، افریقہ اور ہندوستان کے درمیان تجارت کا مرکز رہی۔ ان کے پاس نہ صرف مال و دولت تھی، بلکہ زراعت، تعمیرات، فن حکمرانی اور فوجی نظم و ضبط میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اس علاقے کو قدرت نے ایسی زمین، ایسے پانی اور ایسی ہوا عطا کی تھی کہ ہر فصل زرخیز تھی اور ہر درخت پھلدار تھا۔ سبا کا مرکزی شہر مارب تھا، جو اس دور کی ایک بہترین اور منظم بستیوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ شہر نہ صرف سیاسی مرکز تھا، بلکہ معاشی، دینی اور ثقافتی سرگرمیوں کا گہوارہ بھی تھا۔ یہی پر واقع تھا سد مارب، ایک عظیم الشان بند جسے انسانی ہاتھوں نے تعمیر کیا، مگر اللہ کی توفیق سے یہ بند بارش کے پانی کو محفوظ کرتا اور بعد ازاں کھیتوں کو سیراب کرتا۔ اس کے ذریعے سبا کے لوگ سال بھر زراعت کرتے اور معاشی خود کفالت حاصل کرتے۔ سبا کے لوگ بظاہر خدا کے انعامات کے شکر گزار نظر آتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت، مال کی ہوس اور اقتدار کا غرور گھر کر گیا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بھلا کر سورج کی پرستش شروع کر دی۔ وہ اپنی طاقت، دولت اور ترقی کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے اور توحید سے غافل ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم ہے۔ یہ آیت اس وقت کی مکمل جھلک پیش کرتی ہے، ایک عورت کی حکمرانی، اس کی عقل مندی اور سبا کی عظمت۔ سبا کی حکومت ابتدا میں مرد بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی، مگر ایک وقت آیا کہ قبائل نے ایک باعزت، ذہین اور معاملہ فہم عورت کو اپنا حکمران چنا۔ اس عورت کا نام بلقیس تھا۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے جوڑا جاتا ہے، اگرچہ اس پر مختلف اقوال موجود ہیں۔ ملکہ بلقیس کی حکمرانی کا دور آغاز تھا ایک نئے سیاسی اور روحانی انقلاب کا، جس میں ایک عورت نے نہ صرف سیاست کو سنبھالا بلکہ اپنی فہم و فراست سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کی شخصیت اور سلطنتی حکمرانی کو اگر دیکھا جائے تو ملکہ بلقیس کا نام سنتے ہی ایک ایسی حکمرانی کی تصویر ذہن میں ابھر آتی ہے جو نہ صرف خوبصورت، باوقار اور دانا تھی، بلکہ ایک ایسی عظیم قائد بھی تھی جس کی سلطنت میں امن، عدل اور خوشحالی اور تدبر کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے وقت کی ایک نادر و روزگار شخصیت تھی، جن کی حکومت اور شخصیت پر صرف عورتوں کو فخر نہ تھا بلکہ مردوں کے لیے بھی وہ ایک عظیم مثال بن گئی۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا نام واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مفسرین اور مورخین کے مطابق ان کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ حمید
आमीर से बताया जाता है जो यमन के मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर कबाइल में शुमार होता है। बाज़ रवायात के मुताबिक उनके वालिद एक बादशाह थे जो बे औलाद मर गए और कौम ने मलका बल्कीस की दानिशमंदी, खूबसूरती और मामला फहमी की बुनियाद पर उन्हें अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया। रवायात बताती हैं कि मलका बल्कीस गैर मामूली हुस्न जमाल की मालिक थी। उनके चेहरे पर नूर और गुफ्तगू में कशिश थी। उनकी निगाहों में क़यादत की जोत और उनके लहजे में तदब्बुर की चमक थी। वो जब दरबार में आती तो ना सिर्फ हाजिरी देने वाले खामोश हो जाते बल्कि उनकी मौजूदगी से फिजा में एक अजमत सी छा जाती। मगर उनकी खूबसूरती के साथ साथ हकीकी अजमत उनकी अकल, फहम और सियासी बसीरत थी। वो जज्बात पर नहीं बल्कि हिकमत पर फैसले करती थी। मलका बल्कीस की सल्तनत का दायरा बहुत वसी था। उनकी हुकूमत सिर्फ यमन के जनूबी इलाकों तक महदूद ना थी बल्कि वो इर्द गिर्द के इलाकों जैसे ओमान और कुछ अफ्रीकी साहली रियासतों तक फैली हुई थी। उनकी सल्तनत में तिजारत को मरकजी हैसियत हासिल थी। अरब से अफ्रीका और अफ्रीका से हिंदुस्तान तक का तिजारती रास्ता सबा की सल्तनत से गुजरता था। उनके काफिले कीमती अतरियात, सोना, चांदी, मोती, हाथी, दांत और मसाले लेकर निकलने और दुनिया भर में सबा के नाम को इज्जत बख्शते थे। मलका बिल्कीस की हुकूमत सिर्फ दौलत और तिजारत पर मबनी ना थी बल्कि इसकी बुनियाद अदल, हिकमत और इंसाफ पर थी। वो रआया से हमदर्दी रखती थी, मजलूम की फरियाद सुनती थी और अदल को फोकियत देती थी। उनके दरबार में अहले इल्म, मुशीर और दानिश्वर जमा होते और हर फैसला मुशावरत से होता था। यही वजह थी कि कौम सबा बिल्कीस पर फख्र करती और उसकी हुकूमत को बरकत का जरिया समझती। मलका बिल्कीस और उनकी कौम दीने तौहीद से महरूम थी। वो सूरज की परस्तिश करते थे और तुलुए आफ्ताब के वक्त अपनी इबादत गाहों में जाकर झुकते थे। उनका ख्याल था कि सूरज रोशनी देता है, जमीन को पैदावार बख्शता है और उसी के जेरे असर जिंदगी रमा दवा है। ये वो कुंजी थी जिसने एक अजीम कौम को रूहानी अंधेरों में डाल दिया था। बल्कि बिल्कीस खुद भी इसी अकीदे पर थी मगर उसके दिल में हमेशा सच्चाई की तलब थी। वो सच्चाई जिसे वक्त आने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत ने बेदार करना था। मलका बिल्कीस अवाम की मोहब्बत में बेहद मकबूल थी। उनकी राया उनकी अताअत को बोझ नहीं बल्कि एजाज समझती थी। वो आम लोगों की आवाज सुनती, उनके मसाइल जानती। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि राया सुकून में रहे। वो किसी भी सियासी या जंगी फैसले से कबल अपनी कौंसल मजलिस मुशीरान को जमा करती थी और अक्लो तजर्बे की रोशनी में हर पहलू पर गौर करती थी। मलका बिल्कीस के दौर में सबा में बहुत सी खूबसूरत इबादत गाहें, मोहल्लात, बागात और बाजार तमीर किए गए। उनकी हुकूमत में नज़्म ज़ब्त इस कदर आला था कि एक तिजारती काफिला हफ्तों का सफर बेखौफो खतर तय करता था। शाही महल का खास हिस्सा अर्शे बिल्कीस था, एक अजीम शान तख्त जो सोने, जवाहरात, हाथी के दांत और नायाब पत्थरों से मुज़य्यन था। यही वो तख्त था जिसकी अजमत का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया है। कौम सबा बज़ाहिर दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन कौमों में शुमार होती थी। उनके शहर आरास्ता, उनकी तिजारत मजबूत, उनकी मुआशरत मुस्तहकम और उनका तर्ज हुकूमत मुनज़्ज़म था। मगर एक ऐसा पहलू था जिसने इस सारी चमक दमक को अंदर से खोखला कर रखा था। शिर्क और उसकी सबसे नुमाया शक्ल सूरज परस्ती थी। सबा के लोग अपने वक्त की सबसे रोशन और नुमाया मखलूक यानी सूरज को माबूद का दर्जा देने लगे थे। उन्होंने देखा कि सूरज जमीन को रोशनी देता है, फसलें उगती हैं, दरिया बहते हैं और जिंदगी रवा दवा रहती है। अक्ल नाकिस ने उन्हें यही सिखाया कि जिससे जिंदगी है वही काबिले सजदा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो जात है, वो वाहिद और यकता जात है जिसको सजदे का हुक्म है और वही इसके काबिल है। यूं वो इस खालिक हकीकी को भूल चुके थे जिसने सूरज को भी पैदा किया है। आसमानों और जमीन के रब को छोड़कर एक मखलूक की परस्तिश ने उन्हें तौहीद
के नूर से महरूम कर दिया। कुरान मजीद ने सूरत नमल में आयत नंबर 24 में कौम सबा की इबादत के इस पहलू को यूं बयान किया, और जिसका तर्जुमा यूं है, मैंने इसे और उसकी कौम को अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते पाया। ये अल्फाज हुदहुद परिंदे के हैं, जिसे अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही और मुशाहिदे के जरिए खास इल्म दिया था। वो जब सबा की जमीन से लौटा तो एक अजीब खबर लाया कि एक कौम सूरज को पूजती है और उस पर एक औरत हुक्मरानी करती है। सबा के शहरों में जगह जगह सूरज की इबादत के लिए माबूद मंदिर बने हुए थे। हर रोज तुलुए आफ्ताब से कबल अवाम की बड़ी तादाद इन इबादत गाहों में जमा होती थी और तुलुए शम्स के साथ अपनी पेशानियां जमीन पर झुका देती थी। सूरज के साथ साथ वो चांद, सितारे और कुछ मुकद्दस दरख्तों और पत्थरों को भी माबूद मानते थे। ये सब मुशरिकाना इबादत रफ्ता रफ्ता उनके रस्म रिवाज और सकाफत का हिस्सा बन गई। यही वो लम्हा था जब सबा की तरक्की और शान शौकत के बावजूद वो रब्बे हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत से महरूम हो चुके थे। कौम सबा की सूरज परस्ती एक ऐसा फरेब थी जिसमें ज़ाहरी अक्ल तो मुतमिन हो जाती थी, लेकिन दिल मुतमईन ना था। उनकी मंतक ये थी कि सूरज रोशनी देता है, रिज्क उगता है, और अगर वो ना हो तो जिंदगी ना हो। मगर वो ये ना समझ सके कि सूरज खुद बे इख्तियार है और अल्लाह का मुहताज है। वो तुलुओ गुरूब होता है, कभी तेज कभी मध्यम, और एक दिन फना हो जाएगा। रब वो है जो हमेशा जिंदा है और जिसके हुक्म से कायनात चलती है। मलका बिल्किस बजाते खुद सूरज परस्त थी, मगर उनमें एक खास बात ये थी कि वो सच्चाई की तलाश में हमेशा रहती थी। वो दिल से मुनकिर ना थी, बल्कि अजदाद की अंधी तकलीद का शिकार थी। उनके दिल में हमेशा एक बेचैनी थी कि क्या वाकई हम सही रास्ते पर हैं, मगर कोई ऐसा दाई ना था जो उन्हें हक की रोशनी दिखाता। यही वजह थी कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम आया तो बिल्किस ने उसे रद्द करने की बजाय संजीदगी, फहम और तदब्बुर से कबूल किया। उससे मालूम होता है कि अगरचे वो मुशरिक माहौल में थी, मगर उनके दिल में खैर बाकी थी। मुशरिक कौमें हमेशा अरूज के बाद जवाल का शिकार हो जाती हैं। कौम सबा के साथ भी यही होने वाला था। उनकी रूहानी गुमराही ने उन्हें कमजोर कर दिया और रफ्ता रफ्ता उनकी मादी ताकत भी बिखरने लगी। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब कौमें शिर्क के बजाय कुफ्र और शिर्क की राह पर चलती हैं तो अल्लाह उनकी बरकतें सल्ब फरमा लेता है। सूरह सबा में फरमाया, जिसका तर्जुमा यूं है, फिर उन्होंने मुंह मोड़ा तो हमने उन पर बंद का तेज तूफान भेजा। यानी अल्लाह ने मारब को तोड़ दिया जो एक बंद था और सबा की अजीम सल्तनत छोटी बस्तियों में तकसीम हो गई। नाजरीन, बंद टूटने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत और उनकी हिकमत अमली को अगर देखा जाए, तारीख इंसानी में चंद ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्हें दुनिया की सल्तनत के साथ साथ आसमानों की कुव्वतों पर भी इख्तियार मिला, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात इन तमाम में मुमताज और बेमिसाल थी। आप ना सिर्फ नबी थे बल्कि एक अजीम बादशाह भी थे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कुदरती कुव्वतें अता फरमाई जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी ना थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे थे। उनकी तरबियत एक नबी, बादशाह और जाहिद बाप के जेरे साया हुई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हिकमत, अदल, इबादत और क़ियादत की तालीम दी थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा यूं है, और सुलेमान ने दाऊद का वारिस बनकर हुकूमत पाई। ये वारिस सिर्फ सल्तनत की ना थी बल्कि नबुव्वत, इल्म, हिकमत और हुकूमत की भी थी। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी सल्तनत दी थी जिसमें हवाएं उनकी मर्जी से चलती थीं, परिंदे, दरख्त, जानवर और उनकी जुबान समझते थे, जिन्नात उनके गुलाम थे, लोहा उनके हाथ में नर्म हो जाता था, शयातीन उनके हुक्म से इमारतें, महल और मुजस्मे बनाते थे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह पर फरमाया गया है, तो हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नर्म चाल चलती थी जहां वो चाहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदों की बोलियां और उनका निजाम हयात समझने का खास इल्म
हासिल किया। कुरान कहता है, ऐ लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। उनका लश्कर इंसानों, जिन्नों और परिंदों पर मुश्तमिल था। ये लश्कर जब हरकत करता तो जमीन लरज उठती थी और कायनात खामोश हो जाती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर मुकम्मल इख्तियार अता फरमाया। वो उनसे महल्लात तमीर करवाते, समुंदर की गहराइयों से मोती निकलवाते और शयातीन से खुफिया अलूम की निगहबानी करवाते। कुरान फरमाता है, और वो जिन्नात उसके लिए जो वो चाहता तैयार करते, मेहराबे, मुजस्मे, होज जैसे बर्तन और बड़े देज के। ये सब अल्लाह की तरफ से खास इनाम था जो किसी नबी को उस वसअत से अता ना हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे नुमाया सिफ्त उनका अदल और हिकमत थी। उनके फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक ना थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता करदा इल्हाम, फहम और बसीरत से होते थे। मशहूर वाकया है कि दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ रही थीं, पर एक कहती थी कि ये बच्चा मेरा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, एक खंजर लाओ, मैं बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। एक औरत ने फौरन कहा, नहीं, ये बच्चा दूसरी औरत को दे दो, बस उसे ना काटो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यही इसकी असली माँ है। ये अदल, हिकमत और नफ्सियात का ऐसा इम्तिजाज था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इतनी अजीम सल्तनत, बेशुमार लश्कर, जिन्नात, हवाएं, परिंदे, दौलत और हिकमत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आजिज बंदे थे। वो हर नेमत को अल्लाह का फजल समझते और अल्लाह के हुजूर झुकते रहते थे। वो अक्सर दुआ करते जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। ये दुआ गुरूर ना थी, तकब्बुर ना थी, बल्कि एक इश्क और यकीन था कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि अल्लाह जिसे चाहे कैसा मुकाम दे सकता है। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि असल बादशाही महज जमीन, लश्कर या ताकत का नाम नहीं है, बल्कि हिकमत, इल्म, अदल और अल्लाह की अताअत का मजमुआ है। वो अपने दौर के सबसे ताकतवर इंसान थे, लेकिन उनके दिल में एक लम्हे को भी गुरूर ना था। उनका सर हमेशा अल्लाह के हुजूर झुका रहता था। उनकी जुबान जिक्र इलाही से तर रहती थी और उनकी निगाह अदल से भरपूर थी। उनकी शख्सियत एक ऐसा आईना थी जिसमें नबूवत का नूर, हुकूमत का वकार, इल्म की गहराई और आजिज़ी का रंग यकजा था। वो सिर्फ नबी ना थे, वो एक ऐसा दाई भी थे जो अल्लाह के दीन को ताकत, जुबान और हिकमत के इम्तिजाज से फैलाना चाहते थे। इसी रब्बानी मंसूबे का हिस्सा था मलका बिल्किस की कौम की हिदायत, और यही वो मौका था जिसने एक परिंदे को एक अजीम शान दावत तौहीद का जरिया बनाया। वो परिंदा जिसे कुरान हुद हुद के नाम से याद करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सल्तनत में एक परिंदा भी गायब हो जाए तो उसका हिसाब लिया जाता है, और यही परिंदा जो बज़ाहिर एक छोटा सा मखलूकी परिंदा था, एक अजीम कौम की हिदायत का वसीला बनने वाला था। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुक्मरानी अदल, हिकमत और अल्लाह की बंदगी का दरख्शां नमूना थी। उन्हीं औसाफ के जरिए वो एक गुमराह कौम को तौहीद की तरफ, रोशनी की तरफ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की तरफ बुलाने में कामयाब हो चुके थे।